لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق والأجمعين. والنار للعاصين والجنة للموحدين. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر اور سامعین ذوی الاحترام، غدرن مظلوم کربلا و ماتمدارن سید الشہداء و دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو جاری ہے اور کل اور پرسوں کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو مثبت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جو حدیث پچھلے 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اسی کی تلاوت اور توفیق و سعادت نصیب ہے اور آپ کے سامنے بیان جاری ہے. اس حدیث پاک کے اندر ارشاد نبی اکرم ہو رہا ہے عظمت حسین کے سلسلے سے کہ وہ کشتی نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں. عزیزان محترم، آج دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، اور تبلیغ کے نام پہ کیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ توحید کے پرچم کو بلند کیا جا سکے اور توحید کو سمجھایا جا سکے. عزیزان ایمان، ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ہماری مجلس بھی مجلس ہے، لیکن مجلس کے نام پر یہ بھی تبلیغ ہے. توجہ چار عزیزان محترم، ذرا سا چاہیے اور تھوڑا سا بیدار ہو کر کے نقطۂ عظیم کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، یہ مجلس بھی ہماری مجلس ہے لیکن یہ پوری تبلیغ ہوتی ہے. بس عزیزوں، فرق یہ ہوتا ہے ہماری اور ان کی تبلیغ میں کہ ہم تبلیغ کرنے کے لیے ایک مقام پہ جمع کر لیتے ہیں. وہ تبلیغ کرنے کے لیے گھروں گھروں کا چکر لگاتے ہیں، تب جا کے وہ تبلیغ کرتے ہیں. اور عزیزوں، ہمارے یہاں اور ان کے یہاں بہت بڑا نمایاں فرق ہے. وہ فرق جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ زندہ باتیں اور زندہ مثالیں آپ کے درمیان میں رکھی جائیں جو آپ کے مشاہدے میں بھی ہو اور آپ کے ذہن سے قریب بھی ہو. عزیزان محترم، جب وہ نکلتے ہیں توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، پیغام توحید پہنچانے کے لیے، نماز و روزہ و عبادت کو سمجھانے کے لیے، تو وہ اپنے آپ میں ایک یونین طے کرتے ہیں.
अपने आप में एक कमेटी तय करते हैं, अपने आप में लोगों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद ये तय करते हैं कि 7 आदमी जाए, 11 आदमी जाए, 15 आदमी हो। बड़ा बड़ा काफिला तैयार हो जाता है, होता है कि नहीं होता? जिलाने होता हो जाता है। इसलिए होता है कि हमें चलना है और चल के उलूहियत को समझाना है, तौहीद के परचम को बुलंद करना है और हमें तबलीग करना है। अजीजों, तौहीद के दस्तूर में देखा गया कि अपने वतन को छोड़ा, अपने जगह को छोड़ा, अपने मकाम को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, निकलने के बाद दूसरे खित्ते में आए, दूसरे मंतक़े में आए, दूसरे शहर में आए, दूसरी कॉलोनी में आए, दूसरे मकाम पर आए और आने के बाद उन्होंने अब वहाँ से निकल के तबलीग करना शुरू की। तबलीग करते करते ये देखा कि अज़ीज़ान ईमान मस्जिद से निकल के घरों तक आए। घरों में जब दरवाज़ा बंद देखा तो डफुलबार किया, डफुलबार किया तो बाहर निकले तो सलाम व आदाब के बाद अब गुफ्तगू शुरू है अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए, परचम को बुलंद करने के लिए, नमाज और रोज़ा समझाने के लिए। लेकिन अजीजों, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के आपके ज़हन को बिल्कुल करीब करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने अपना पैगाम सुनाया, उन्होंने अपना मैसेज दिया, उन्होंने अपना संदेश दिया, जो उन्होंने समझाना था समझाया, समझाने के बाद चले गए। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, मेरी भी नज़र थी, हम भी अपनी नज़र से देख रहे थे कि उसी बस्ती में, जिस बस्ती में तबलीग कर रहे थे, सारे घरों पर गए, एक घर पर नहीं गए। सारे घरों पर तबलीग करने के लिए गए, एक घर पर नहीं गए। मैं बहुत गौर से देखता रहा कि आखिर सबब क्या है। सारे घरों पर जा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, तौहीद को समझा रहे हैं, इबादत के फार्मूले बता रहे हैं, सारे बयान कर रहे हैं, सारे घरों पर जा रहे हैं। लेकिन उसी बस्ती के अंदर एक घर ऐसा भी है जो मुसलमान है, उसके यहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं गौर मुशाहदा करता रहा, करते करते जब मैं करीब होके आया तो मैंने देखा कि वो लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उसके दरवाजे पर एक प्लेट लिखी हुई है। तवज्जो चाह रहा, उसके दरवाजे पर एक प्लेट लिखी हुई है और उस प्लेट पर मैंने देखा कि कोई रहने वाले का नाम नहीं लिखा था। मैं चाह रहा हूँ जरा फैलाइए। मैंने उस प्लेट को करीब से देखा तो देखने के बाद ये अंदाजा हुआ कि जो उस मकान में रह रहा है, रहने वाले का कोई एड्रेस नहीं था, रहने वाले का कोई पता नहीं था, रहने वाले का कोई उस पर एड्रेस नहीं लिखा था। उस पर एक प्लेट लिखी थी, जिस प्लेट पे कुछ अस्मा लिखे थे, उस अस्मा में मैं नाम लेता हूँ। ऊपर लिखा था अल्लाह, नीचे लिखा था मोहम्मद, उसके आगे लिखा था अली, उसके बाद लिखा था फातिमा, फिर लिखा था हसन, उसके बाद लिखा था हुसैन। मैंने कहा कमाल की बात है, ये सारे घरों पर तबलीग करने के लिए गए, लेकिन जिस घर पर प्लेट लगी हुई थी वहां तबलीग करने के लिए नहीं गए। मैं करीब हुआ, जाने के बाद हाथ जोड़ के सवाल किया, मैंने कहा हुजूर आखिर सबब क्या है? आप सारे घरों पर जा रहे हैं मैसेज देने के लिए, तवज्जो चाह रहा हूँ, सारे घरों पर जा रहे हैं मैसेज देने के लिए, सारे घरों पर आप जा रहे हैं, सलवात पढ़े तो बस्ती में जितने मुसलमान के घर थे सारे घरों पे गए, सारे घरों पे जाकर दरवाजे पर नॉक किया, उन्होंने तबलीग की, उन्होंने पैगाम पहुंचाया। लेकिन उसी बस्ती के अंदर जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ वहां वो पहुंचे नहीं, वहां गए नहीं। आखिर रीजन क्या बना? रीजन ये बना कि उसके दरवाजे पर एक प्लेट लिखी हुई थी, उस प्लेट पे अस्माए गिरामी लिखे थे, उसकी बुनियाद पर वो गया नहीं। मैं करीब होकर गया, मैंने जाने के बाद सवाल किया, अरे हुजूर लिल्लाह, खुदा के वास्ते जब सबको पैगाम पहुंचा रहे हैं, सबको तबलीग कर रहे हैं, सबको आप मैसेज सुना रहे हैं, सबको उलूहियत के बारे में बता रहे हैं, सबको इबादत के फार्मूले समझा रहे हैं, तो आप इन्हें भी तो बताइए, ये भी तो मुसलमान है। उन्होंने प्लेट एक जवाब दिया, कहा तुमने देखा नहीं है कि उनके दरवाजे पर कोई प्लेट लिखी हुई है? अरे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, उनके दरवाजे पर कोई प्लेट लिखी हुई है, मैंने वो प्लेट लिखा है, उससे आपको वास्ता क्या है? कहा वास्ता का इतना है कि हम इसलिए नहीं जा रहे
اس لیے نہیں گئے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے ہم انہیں نہیں بدل سکتے، یہ ہمیں بدل دیں گے۔ میں اس طریقے کی گفتگو کرنے کا بالکل عادی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی درمیان میں جب بات آئے تو کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی آپ کو جانتے ہیں، بات بناتے چلے جائیں، نظام محترم توجہ جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا صاف صاف کہ اس کو گھر سے چڑ رہی تھی، گھر سے چڑ رہی تھی، جو اس نے نیم پلیٹ لی تھی اس پلیٹ کے اوپر جو اسما کے تھے اس اسما سے چڑ تھی کہ ہم اس دروازے پر نہیں جائیں گے، ہم اس دروازے پر نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں صاحب؟ کہا اس لیے کہ جو اسما لکھے ہوئے ہیں وہ اسما میں نے دیکھ لیا ہے، اور دیکھنے کے بعد مجھے پہچان ہو گئی ہے کہ یہ والے کیسے ہوتے ہیں، یہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا سنیے، جب آپ کے اذہان مبارکہ میں یہ سارے خبائث پیغام آ گئے ہیں تو سنیے نتیجہ۔ عزیزان محترم، آج آپ نے اس پلیٹ کو دیکھ کے منہ موڑ لیا، کوئی بات نہیں ہے، دنیا ہے چلے گا۔ آپ نے اسما کو دیکھا، منہ موڑ لیا، دنیا ہے چلے گا۔ لیکن میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے اس تاریخ میں دیکھا بھی کہ پروردگار عالم نے جب جنت میں لوگوں کی انٹری کی تو یہی اسما جسے دنیا نے دیکھ کے منہ موڑا تھا، اسی اسما کا وہاں بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب اس اسما کا وہاں سامنا کرنا پڑا، وہی قبیلہ مجھے بھی مل گیا۔ میں نے کہا حضور اب کیا کریں گے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ انہوں نے پلٹ کے کہا اب کیا کریں، مجبوری ہے، اب کیا کریں۔ سنیے، میں نے کیوں کہا دنیا میں بدلنے کے لیے راستے تھے، ہم یہاں سے ہٹ کے دوسرے راستے پہ جا سکتے ہیں، یہاں اگر چھوڑا تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، کہ جس کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہاں بھی آپ کا سہارا اور وہاں بھی آپ کا سہارا۔ بات کہیں دور نہ چلی جائے عزیزوں، میں اس بات کو مکمل لے جاؤں، اس لیے کہ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا عزیزان ایمان، اگر آپ کے ذہن مبارک میں موضوع ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ سماجی مومن اور ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں مومن اور ہوتا ہے نا۔ تو سماجی مومن تو کسی کو بھی مومن بنا دے گا، جس کو چاہے مومن بنا دے گا۔ اور یاد رکھیے، سماج جب کسی کو مومن بناتا ہے تو مومن حقیقی نہیں بناتا، سیاسی مومن بناتا ہے، اور سیاسی مومن بہت ڈینجر ہوتا ہے، جسے آپ کہیے آستین کا سانپ۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو شریعت نے کہا کہ مجھے سماجی مومن نہیں چاہیے، مجھے شریعتی مومن چاہیے جو شریعت کی نظر میں مومن ہو۔ تو سماج نے مومن کسے بتایا؟ جو عبادت کر رہا ہو، لوگوں کی مدد کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، خیر عمل انجام دیتا ہو، لوگوں کے یہاں عیادت کے لیے پہنچتا ہو، مجلس ماتم میں سب سے پہلے آتا ہو، نماز میں سب سے پہلے شریک ہوتا ہو، اسے سماج نے اپنے اعتبار سے طے کر کے کہا کہ یہ مومن ہے۔ لیکن شریعت نے کہا سنو، ہم جسے مومن کہہ رہے ہیں ہماری نہج اور ہماری بحث بالکل الگ ہے۔ شریعت نے پہلا قانون بتایا کہ اگر مومن ہوگا تو اس کی زبان بالکل کلیئر ہوگی، صاف ستھری ہوگی،
शरीयत से पूछना चाहता हूँ मसला क्या है, आप इतनी क्लियर बात क्यों करना चाह रहे हैं? कहा सुनो, जबान का असल मकसद और मफहूम ये होना चाहिए कि जो बोले सच बोले, जो कहे सच कहे। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ कुछ कहता हो, बाहर निकले तो कुछ कहे नहीं। यही जबान, कल मैंने अर्ज किया था कि गाली भी दिलवा देती है, यही जबान अच्छे कलाम भी करा देती है। अच्छा सुनिए, अभी मैं इसी पे बहस करूंगा तो पूरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इससे आपको आगे ले चलना है, वरना बात से बात टकराने लगेगी। तो शरीयत ने क्या कहा कि इंसान की सबसे पहले जो मोमिन बन रहा है कि जबान बिल्कुल साफ सुथरी हो, झूठ नहीं, ये नहीं हो कि दुश्मन करता हो, गाली गुफ्तार करता हो। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो शरीयत ने कहा इतना जल्दी मोमिन न कहो, इसी पे फैसला करके तुम मोमिन न कहो। कहा मतलब क्या है? कहा जरा सा कदम आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ा के ये देखो कि जो जबान से कह रहा है उसका अमल कैसा है। सुभान अल्लाह। ये देखो कि जो उसने जबान से कहा है, उस जबान से कहने के बाद उसका अमल कैसा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब अमल सही हो, जबान से अमल टैली कर रहा हो, मिल रहा हो, तब आप कहिए कि हाँ ये मोमिन के दायरे में आ रहा है। ये न कहिए कि वो मोमिन हो गया मोहतरम, अभी वो दायरे ईमान में, दायरे मोमिन में उसने कदम रखा है, जबान को सही किया है। तो जबान को सही करने के बाद अब वो अमल को सही करे। होता क्या अज़ीज़ान मोहतरम, ये मसले के दरमियान अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद उसी पे खुद का अमल करना बहुत मुश्किल है। तो शरीयत ने कहा कि ऐसे तो मोमिन नहीं कहते। सुनिए, वाक़या सुना होगा अज़ीज़ान मोहतरम, अमल के लिए जरूरी यह है कि जो आप पहले किसी को तबलीग करना चाहते हैं, खुद अपनी तबलीग कीजिए। क्या कहना है? अपनी अगर आप तबलीग कर रहे हैं और अपने आप को उसमें पा रहे हैं कि हम फिट हैं, तब किसी से कहिए, उसका फिर असर होगा। नहीं, आप कर नहीं रहे, दूसरे से कहिए, तो जब आप खुद ही गायब है, तो अगर वो गायब हो जाता है तो ताज्जुब की क्या बात है? नहीं ना। रसूल इस्लाम की बात सुनते रहते हैं आप। एक औरत अपने बच्चों को लेके आई, बुलाने के बाद कहा हुजूर, अब मैं आज की जबान में कहता हूँ, उसका लफ्ज है मेरे पास मौजूद, आज की जबान में सुनिए। अब मैं वो लफ्ज नहीं लाऊंगा, बस मीठे का लफ्ज सुन लीजिए कि जो मीठा बहुत खाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे का मशहूर गुलाब जामुन खाता, मीठा बहुत खाता, तवज्जो। तो रसूल इस्लाम ने कहा ठीक है, कहना क्या चाहते, कहा हुजूर इसे कह भी दिए कि जरा मीठे से अवॉइड करे बचे। रसूल इस्लाम ने कहा ठीक है मैं कह दूंगा, लेकिन इसके लिए 3 दिन के बाद आना। महसूस कर रहे हैं? तवज्जो, मैं कह दूंगा लेकिन इसके लिए 3 दिन के बाद आना। अच्छा ये बताइए, ये चीज अगर हमसे कोई पूछे तो मैं तो फौरन मैं तक के कह दूंगा कि मत खाओ, नुकसान है, शुगर बढ़ जाएगी, डायबिटीज के मरीज हो जाओगे, 2-4 तो तुम्हारी चलेगी। जैसे हमारे मौलाना साहब भी हैं बिल्ला, ये भी शुगर पेशेंट हो गए हैं। खुदा करे कि सारी बीमारियों से बदिक्र 4 नमाज़ सारी बीमारियों से शियाने हजरत कबार महफूज रहे, लेकिन उस महफूज के साथ साथ एहतियात और एतदाल जरूरी है। इस चीज का फौजी भी डाल देता हूँ। रसूल इस्लाम ने कहा, वो चली गई। फिर 3 दिन के बाद अब कह दीजिए, उन्होंने फौरन कहा कि ठीक है मत खाना। अब ये पलट गई वहां से, पलट के कहती है ये अच्छी सी बात थी, इसमें आपने 3 दिन का कह लिया, उसी दिन कह देते तो न मैं आती न 3 दिन इंतजार करती। जुमला सुनेगा दीजिए, मिंबर की अता जो बात करने जा रहा हूं, न मैं आती न मुझे 3 दिन इंतजार करना पड़ता। अजब यही, अब ये मेरा मुद्दा दिला, अजब यही कि रसूल इस्लाम ने उससे कहा कि मैं तुझे 3 दिन इंतजार करा के तुझे इंतजार के लायक बना रही हूँ, तुझे इंतजार के लायक बनाना हो। अब उसने पलट के पूछा पहले कैसे करते, क्यों न कहा सुनो पहले मैं भी यूज
اپنی بات فرمانا ہے تو میں نے اب 3 دن پرہیز کیا ہے، اس کے بعد میں نے اسے بیان کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ رسول اسلام نے آواز دی کہ تمہیں پتا نہیں ہے ہم دنیا میں آئے ہیں ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو. رسول اسلام کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. رسول اسلام آئی ہاتھی بن کی، یہ تو کہہ سکتے تھے لیکن نہیں. یہ سارے ان کے معاملے جو واقعات کی شکل میں آتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت آموز، نصیحت آموز. ان کا ایک ایک اسٹیپ، ایک ایک جملہ، ایک ایک قدم حکمت سے بھرا ہوا ہے. سبھی عزیزوں، شریعت نے کیا کہا؟ اگر زبان صحیح تو زبان کے بعد عمل زبان کے مطابق اگر ہے تو پھر وہ مومن بننے کے لائق ہو. اچھا ٹھیک ہے صاحب، شریعت سے چلو پوچھیں اب اسے مومن کہا جائے گا؟ نہیں، اتنا جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ 2 ہی معاملے اس کے ٹھیک ہوئے تو تم نے مومن کہہ دیا. میں شریعت کے لحاظ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یا رسول اللہ شریعت آپ لے کے آئے ہیں، مومن بننا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کافروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے زبان صحیح ہو، زبان کے بعد اس کا عمل صحیح ہو، اور اب جب عمل صحیح ہو تو اب یہ دیکھو کہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل میں نیت کیا ہے. توجہ، اس عمل میں نیت کیا ہے؟ یہ نیت عزیزان ایمان بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھیے آپ کے عمل کی جان کا نام ہے نیت، نچوڑ ہے یہ نیت. آپ سمجھتے ہیں جو مکان آپ بناتے ہیں، مکان کی بنیاد جتنی محکم ہے اللہ اکبر اتنا ہی آپ کا مکان مضبوط ہے. تو جو اس کی بنیاد ہے وہ بنیاد نہیں ہے، وہ مکان کی نیت ہے. جتنی نیت کبھی کریں گے آپ اتنا ہی آپ کا مکان. عزیزان ایمان، 2 فٹ کا گڈھا کھودیں اور کھودنے کے بعد آپ اس پہ 10 مالا بلڈنگ تیار کرتے ہیں تو وہ 75 پہنچ تو جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ سیدھا آپ کو لے کے جتنا لگایا تھا وہ ایک ہی بار میں نیچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بنیاد کو آپ مضبوط کریں تو 10 نہیں 160 مالا بھی چلی جائے گی. گئی ہے نا، تو آپ جانتے ہیں دیدار محترم، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اشارہ ہے دیدار محترم. تو زبان صحیح، عمل صحیح اور اس کے بعد نیت صحیح. اگر نیت صحیح ہے تب آپ کہیے کہ ہاں مومن بننے کے لائق ہو رہا ہے. یاد ہے دیدار محترم، میں بار بار کہتا ہوں کہ نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. سنیے، مولا کائنات ہے، مسجد کوفہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت میں مصروف ہے، آنے والا شخص ہے، نماز کا وقت ہے، وضو کیا، مصلی کے قریب گیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے فوراً یہ دیکھا کہ ابھی نماز مکمل ہے تو اب چلو جو بیٹھا ہوا چل کے اس سے ملاقات کرنے چلتے ہوئے مسافہ کرتے ہیں. نماز کے بعد ان کے پاس گئے، جانے کے بعد سلام کیا، مسافہ کیا، مسافہ کرنے کے بعد خیریت پوچھ لی. توجہ چاہ رہا ہوں، مسافے کے بعد خیریت پوچھ لی. انہوں نے کہا ہم خیریت سے ہیں لیکن تم بتاؤ خیریت سے ہو یا نہیں ہو. انہوں نے کہا حضور ہم خیریت سے ہیں. تو مولا نے فرمایا اگر سے تم خیریت سے ہو گے تو اتنی اجرت نہ کرتے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اتنی اجرت نہ کرتے. کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جب تم آ ہی گئے تھے مسجد میں تو جو عبادت کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا ذرا ڈھنگ سے پڑھ لیتے. اس نے جب یہ لفظ سنا تو فوراً دوبارہ مصلی پر آیا.
अब मसला मैं मिसाल दे रहा हूं, जो उसने नमाज 2 मिनट में पढ़ी थी, अब वो नमाज उसने 10 मिनट में पढ़ी। तवज्जो चाहना, नीयत समझिएगा, जबान, अमल और नीयत। जबान से डेली अमल करना चाहिए और अमल से डेली नीयत होनी चाहिए। उसने जो नमाज 2 मिनट में पढ़ी थी, उसको 10 मिनट में पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर आया अली अलैहिस्सलाम के बाद और आगे कहता या अली अब तो आप खुश हैं? तो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अली ने फरमाया मैं बिल्कुल खुश हूं। तवज्जो चाहने की बात होता हूं, मैं बिल्कुल खुश हूं। अब उसने जब ये देखा कि मेरा मौला खुश है, तो जाते जाते एक बात कहने लगा, या अली ये बताइए कि जब आप खुश हैं तो इसका मतलब ये कि ये वाली नमाज मेरी बेहतर होगी। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आसान भी कोई कर दिया। जब आप खुश हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली मेरी नमाज बेहतर है। जैसे ही उसने एक जुमला कहा, मिंबर पर बैठने वाला सलूनी का दावा करने वाला अली बोल उठा कि जिसके बारे में तू ख्याल कर रहा है कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, वो वाली बेहतर नहीं तो तू पहले बढ़ चुका है। बेहतर वो वाली है। जैसे ही इसने ये लफ्ज़ सुना, फौरन हाथ को जोड़ के कहता है, अली आपको तो परेशान कर दिया, आप तो परेशान कर रहे हैं। कहा क्या मतलब? कहा जब वो बेहतर थी, जब वो बेहतर थी तो आपने पढ़वाई क्यों? तवज्जो कर रहा हूं, आपने पढ़वाई क्यों? मैं उसे ही पढ़ के चला जाता। अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसके अंदर भी हिकमत है, इसके अंदर भी हिकमत है। उसने पलट के पूछा, बोला जब वो बेहतर थी तो आपको ये पढ़ाना नहीं चाहिए था, आपने इसमें मेरा इतना फौकदार किया। ये बताइए क्यों बेहतर है? जब बेहतर है तो क्यों बेहतर है? अली अलैहिस्सलाम समझा के कहते हैं कि तू याद मत, बेहतर वो इस वजह से है कि पहले तूने चाहे जैसी पढ़ी वो पढ़ी खुदा के लिए। क्या बात है भाई, कितना आसान भैया। पहले चाहे तूने जैसी पढ़ी, बात छाप के जुमला सुना भी हो, पहले तूने चाहे जैसी पढ़ी वो पढ़ी खुदा के लिए, लेकिन जो तूने दूसरी पढ़ी है वो खुदा के लिए नहीं, अली को दिखाने के लिए। अली को दिखाने के लिए। मैं कहूँगा मेरा मौला पैगाम क्या है? तो अली ने कहा सुनो पैगाम ये है, मैं पूरी दुनिया को समझाना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमान कम से कम इतना जान ले कि नमाज का ताल्लुक अली से नहीं है, नमाज का ताल्लुक खुदा से है। अगर से नमाज मुझ अली को दिखाने के लिए भी पढ़ोगे तो नमाज नहीं, नमाज बातिल हो जाएगी। वो नमाज खुदा के लिए। अच्छा, इसका मतलब ये कि नीयत इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नीयत उसकी सही तो अमल सही, अमल सही तो ज़बान सही। शरीयत मोमिन समझिए आप, मोमिन बनना कितना आसान है। समाजी मोमिन बहुत आसान बन जाइए, लेकिन शरीयत की नजर में मोमिन बनना, अच्छा साहब क्या है नीयत, क्या समझें? इतना नीयत का दखल है। जनाब पहलूल को तो आपने जाने कितनी दफा सुना होगा। जनाब पहलूल हैं, सुनिए, नीयत समझिए। आ रहे हैं और आते उन्होंने क्या देखा कि एक जगह मस्जिद बन रही है। तो ये ख्याल है कि चलो जब मस्जिद बनी तो वहां चल के पूछेंगे ये कौन साहब हैं, क्या करा रहे हैं। गए तो जो मस्जिद बनवा रहा था, लेबर वर्कर मजदूर लगे हुए, जाके पूछा उन्होंने ये क्या बन रहा है? अच्छा ये बताइए, ये तो वाकया इस मकाम पे ला के खड़ा करता है कि जहां इंसान ये तमीज नहीं कर पाता कि ये चीज क्या बन रही है। मसलन उसमें होता क्या है कि अभी कुछ छोटी मोटी दीवार उठी होगी, तो छोटी मोटी दीवार उठेगी तो क्या फैसला करेंगे? जब दीवार कामत हो जाती है, उसके नक्शो निगारी हो जाती है, तो समझ में आ जाता है कि मस्जिद बन रही है, क्या खाना बन रहा है, कि क्या होता है कि नहीं होता।
लेकिन अभी छोटी छोटी दीवारें में क्या करेंगे आप, अभी जाने होता हूँ जनाब बहलोल तू क्या बन रहा है ये। अब जाहिर सी बात है, पैसे वाला था, ताजा ताजा पैसा उसके पास आया था, उन्होंने फौरन सीना चढ़ा कर कहा, ओ क्या सवाल कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है अल्लाह का घर बन रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ये क्या कर रहे हो, हाँ वो कौन सा फरमान है, कहा हम ही है। तो बहलोल ने एक बार देखा और देखने के बाद कहो वो ताजा मुसलमान हो सुना दूं, सुनिए अजीजों, तुम अल्लाह का घर बना रहे हो, नया पैसा आया तुम्हारे पास और उस नए पैसे का असर ये है कि तुम अमल के बात कर रहे हो। याद रखो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को सब पसंद है, अकड़ पसंद नहीं, सब पसंद है, उसे अकड़ नहीं पसंद है। अच्छा उसने अकड़ने के लिए ये नहीं कहा कि बड़ों की अकड़ पसंद नहीं है, ना छोटा भी अकड़ जाए। अब अकड़ने का तर्जुमा तो आप जानते हैं, सिद्धि हो जाए और जिद्दियों का नहीं कहा मैं तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगा, अपनी में जाऊंगा, सुना है ना। और जब उसने जन्नत बना भी दी तो अपनी में भी नहीं जा पाया, अपनी में भी नहीं जा पाया। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत बनाना और है, जन्नत में जाना समझ रहे बात। तवज्जो, नया पैसे वाला था, उन्होंने कहा आप इतना करो, लगा ठीक है। अब तुमने पूछा क्यों, तो बहलोल ने कहा यही जानने के लिए कि तुम करा क्या रहे हो। तो तुमने बता ही दिया है कि खाना खुदा बन रहा है, मस्जिद बन रही है, अल्लाह का घर बन रहा है। तो जनाब बहलोल ने कहा सुनो ये कल पता चलेगा। अच्छा इस कल पता चलने में आप क्या समझते हैं, पैगाम है, यानी पैगाम नहीं ये धमकी है। ये तो मैं अपने लफ्ज में आपको समझा रहा हूं, कल पता चल जाएगा। अच्छा साहब शाम हुई, ये लोग छोड़ के चले गए, काम कितना होता है क्योंकि चले गए। जनाब बहलोल का उफ क्या प्लान है समझिएगा। जनाब बहलोल प्लानिंग करने के बाद सुबह ही सुबह, जैसे हमारे अल्लाह साहब नमाज के बाद निकलते हैं टहलने के लिए, और ये बहुत से लोग हैं, जरूरी है आज की दुनिया में इसे वर्जिश और कसरत और एक्सरसाइज कहते हैं, बहुत जरूरी है। सेहत को आप हिफ्ज़ो अमान अगर देना चाहते हैं तो ये करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमारे जिस्म का हिस्सा कौन सा कब सो जाता है खुद हमें ही खबर नहीं है। तो जगाने के लिए, बॉडी को अपडेट रखने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। सुबह ही सुबह इन्होंने देखा कि कोई देख नहीं रहा है, फौरन एक काम किया, तस्वीर उठाई और उस पर लिखा मस्जिद के बनाने वाले बहलोल हैं। सुना आपने, पहचानिए अगर तवज्जो चाह। आपको शरीयत समाजी मोमिन नहीं देखना चाहती, शरीयत अपनी नहज से इस्लाम के दायरे में मोमिन बनाना चाहती है। इसलिए कि ये जो मोमिन बनेगा, अरे मैं क्या कहूं, जुमला आ रहा, तवज्जो चाह रहा हूं, समाजी मोमिन जो बनेगा और जो शरीयत की नजर में मोमिन बनेगा, दोनों के मोमिन बनने में बड़ा फर्क है। समाज का मोमिन फसाद पैदा करता है, शरीयत का मोमिन इत्तेहाद पैदा करता है। सवाल करके उसको मस्जिद के बनाने वाले, और जिन्होंने देखा दाएं बाएं झांक के देखा कि कोई देख तो रहा नहीं, फौरन लेके आए, कोई देख नहीं रहा था, मस्जिद के दरवाजा मार कर नीचे इसलिए सीधे आए। अब साहब चूंकि काम का जो वक्त होता है 8-9 बजे जो टाइम होता है उसकी तरह से चले आए। आने के बाद जो वहां काम कर रहे थे मजदूर, सबसे पहले मजदूर की उस पर नजर पड़ी उसकी तख्ती और उसके मालिक का नाम गायब। अरे साहब वो कहां बनवा रहे हैं, उनका तो कोई नाम ही नहीं है, और नाम तो छोड़िए साहब, कोई उन्होंने डोनेशन भी नहीं दिया। आज के समाज में कोई भी आप करबला, रौजा, मस्जिद, अदाखाना कुछ भी बना रहे हो, और हद ये है कि अगर से कोई ताबूत या कोई भी खैर अमल कर रहे हो
تو آدمی یہ سوچتے ہیں کہ آپس میں کنٹریبیوشن کر کے چندہ کر کے بل اکٹھا کر کے پلیٹ فارم دے دیا جائے. تو مثلاً گاؤں کے اندر, شہر کے اندر, منطقے کے اندر اگر 10 لوگ رہ رہے ہیں تو 10 لوگوں کی بساط ایک جیسی نہیں ہے. ایک کی بساط ہے 8,000 دینے کی, ایک کی بساط ہے 800 دینے کی. تو جس نے 800 دیا تھا اس کا بھی نام چاہیے, اور جس نے 8,000 دیا تھا اس کا بھی نام چاہیے. لیکن 8,000 والا یہ چاہتا ہے کہ 800 والا نیچے رہے اور 8,000 والا اوپر رہے. وہاں اس نے کہا کمال کی بات ہے, بہلول نے 1 بھی روپیہ دیا نہیں, اور یہاں سب سے بڑا کام یہ کر دیا کہ نام اپنا تبدیل زمین میں حرکت کی, پسینہ ٹپکنے لگا, دوڑ کے عمر کے پاس آئے, کہا حضور آپ کا نام بھائی. اب جیسے ان کو جھٹکا لگا صاحب, اب وہ تو بڑا کنفیوز کیا اچانک آنے کے بعد, آج تو ایسا ہوا کہ کیا کرا, کہاں سے نام گائے. کہا سنیے وہ جہاں بنا رہے ہیں اس پہ اتنا روپیہ آپ کا لگ گیا ہے, کوئی بینیفٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا بینیفٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا تو ارادہ ایک دم مسمار ہو گیا ہے. وہ جس نے پوچھا تھا آپ سے کل نا, تو کل آپ کو اس نے کیا کیا تھا, دھمکی دی تھی کہ نہیں؟ کہا ہاں دی تھی. کہا اسی نے ہم کو لگتا ہے کہ حرکت کر دی ہے. اور نے جلدی سے انہوں نے کہا حرکت بتاؤ کیا کی. کہا وہی دروازے کے پاس اس نے ایک تختی لگائی اور اس تختی پہ آپ کا نام آئے, اپنا نام لکھا ہے. اب ان کا موڈ خراب, فوراً سے تبدیل ہوا. کہا سنو آج کام ہم نہیں ہوگا, پہلے اسے کھوج کے لاؤ. سروا پر محمد پہلے اسے تلاش کر کے لاؤ. سنو کل اس نے دھمکی دی تھی, آج میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر وہ آنے میں ضد کرے تو پٹائی کرنا. توجہ جانے کے واقعات ہیں دیدار مطلب, حقیقت ہے یہ بالکل. دیدار مطلب اب انہوں نے کہا کہ حضور چلو کم سے کم اس بہانے سے آج کام سے فرصت ملی, اور فرصت ملی تو ہماری اجرت ہو ہی جائے گی. اور مزدور تو فری جاتا ہے, مزدور تو فری جاتا ہے, جتنا کام کم ہو لیکن بیلنس زیادہ ہونا چاہیے. وہ صاحب نے کیا اور ادھر ادھر کھوجنے لگے, بڑی مشکلوں سے بہلول ہاتھ آئے. تو بہلول نے جب انہیں دیکھا تو پہچان تو لیا ہی تھا. تو ایسے مقام پر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جس نے جو حرکت کی ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ رفو فرار کریے, آپ آگے بڑھیے. تو انہوں نے جو نارملی ان کے قدم کی اسپیڈ ہوتی تھی, جب اس کو آتا دیکھا تو انہوں نے اسپیڈ بڑھائی. اب اسپیڈ بڑھائی تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان کو گرفتار کے چنگل میں لیا. لینے کے بعد کہا سنو ایسا ہے کہ جو تم حرکت کر کے آئے ہو نا وہی چلو, شرافت یہی ہے. انہوں نے کہا کہ بولو صاحب اچھا ہمہ سنما اگر ہوتا, اب میں ان کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی نہیں کرتا, اب میں سماج کا مومن آپ کو سمجھا دوں. اب اس کو 1 سیکنڈ کے لیے روکیے. ہمہ سنما سماج کے اعتبار سے ہوتا اور یہ اگر معاملہ ہو جاتا تو پہلے تو ہم یہی کرتے. آج کی ڈیٹ میں جب پولیس اریسٹ کرتی ہے تو پہلے ہم کیا کرتے, حضور وہاں نہ لے جائیے, یہی کچھ لیجیے اور معاملے کو رفع کرتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا, کرتے کہ نہیں کرتے, ہے نا, آپ بالکل جانتے ہیں. تو اب میں وہاں تو کہہ نہیں سکتا, لیکن اگر ہم ہوتے تو ہم تو یہی کرتے کہ صاحب میٹر کو دبا دیجیے, 5,000 کی گڈی دیجیے, چلے جائیے. تو وہ لیتے بھی خوش ہوتے ہو, جا کے کہہ دیتے حضور وہ ملے ہی نہیں. لیکن وہاں انہوں نے رشوت تو دی نہیں اور انہوں نے کہا بتائیں گے نہیں. تو نے کہا حضور چلیے, نہیں تو آپ نے کل دھمکی دی تھی, انہوں نے ہمیں وارننگ دی ہے, کہا چاہے جو بھی ہو ہم لے جائیں گے. تو اب چونکہ وارننگ تھی تو وارننگ میں حملہ بھی ہوا. جب حملہ ہوا تو انہوں نے کہا چلو اب تو چلنا ہی پڑے گا. آگے بہلول, اب بہلول جب آئے ہیں تو اس نے جیسی مالک نے دیکھا اور اس کا چونکہ موڈ خراب ہی تھا, انہوں نے کہا حضور آپ یہ بتائیے کہ آپ اس مسجد کے بنانے والے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو کہا جب بنانے والے نہیں ہیں تو آپ کی جرأت کیسے ہوئی کہ یہاں پہ آپ نے اپنے نام کی نیم پلیٹ لگا دی؟ آپ کو لگانا نہیں چاہیے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس مسجد کے بنانے والے ہم ہیں. تو جناب بہلول نے کہا سنو سب کچھ صحیح, یہاں تختی لگی ہے, ایک نیت پہچانیے گا, زبان
चाहिए था, इसलिए कि इसके बनने के बाद अजर तुझे बंदा नहीं देगा, अजर खुदा देगा। अब ये बताइए आप इंसाफ से, जबान तो उसकी ठीक थी ना, तो मस्जिद बने ठीक थी कि नहीं थी? मस्जिद बताइए ठीक है ना, जबान है, जबान से उसने कहा मस्जिद बनेगी, उसी जबान से मिलकर उसने अमल कर लिया, तामीरी शक्ल देना शुरू की, तो जबान से मिलकर अमल हो रहा था, अमल ही के मुताबिक नीयत हो जानी चाहिए थी, लेकिन नीयत तो चेंज हुई ना, सिला कहाँ जाएगा? वाह वाह सुभान अल्लाह। सुनिए, जनाबे मूसा हैं, दरिया के करीब हैं, एंट्री करना चाहते हैं, लश्कर पीछे लगा हुआ है, तीनों चीजें चल रही है ना, जबान क्या है? दरिया में जाना है, अमल क्या है? उतरना है, नीयत क्या है? पार करना है। लेकिन दो नीयतें यहां दिख रही हैं, एक नीयत ये है कि दरिया को पार करें, एक नीयत ये है कि हम इनको शहीद कर दें, मार डालें। नहीं ना, फिरौन का लश्कर क्यों आ रहा था? क्या नीयत थी उसकी? मारने की नीयत थी ना, या छोड़ने की नीयत थी? छोड़ने की नीयत होगी तो पीछा ही नहीं करता, मारने का इरादा था उसका। तो एक नीयत ये भी है, एक नीयत ये भी है। उस नीयत में हमने देखा कि जनाब मूसा की कौम दरिया के किनारे खड़ी हो गई, और खड़ी होकर करी हुजूर सब कुछ ठीक है, हम यहाँ तक आ गए हैं। जबान उसकी चली, और चलने के बाद मूसा को कहा, या नबी अल्लाह, हम उसमें नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सामने पानी दिख रहा है, और पानी नहीं, इसका मतलब हमें तैरना तो आता नहीं है, कोई हल्का फुल्का रास्ता भी नहीं है, हम इसमें जाएंगे तो हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो कहा फिर इसके लिए चाहते क्या हो? चाहते हैं कि अगर रास्ता क्लियर हो तो बात बनेगी, रास्ता क्लियर नहीं है तो बात नहीं बनेगी। जनाब मूसा ने कहा ठीक है, रास्ता तुम चाहते हो। ऊपर देखा, अल्लाह का इल्हाम हुआ, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि मूसा घबराते क्यों? हमने तुम्हें ऐसे थोड़ी भेजा है, तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है जिसे ऐसा समझते हो, उस ऐसा को तुम्हारा उसके ऊपर, और फौरन ही रास्ता बनेगा। और एक रास्ता नहीं, जितने चाहो उतने रास्ते बनेंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एक नहीं, जितने चाहोगे उतने रास्ते बनेंगे। और याद रखिए, जनाब मूसा के पास जो साथ चल रहे थे एक कबीला नहीं था। तफसीर और तारीख में लिखा कि 12 तरह के लोग थे, 12 कबीले थे जो जनाब मूसा के साथ चल रहे थे। जैसे ही इस कबीले ने देखा कि एक रास्ता बना, तो रास्ते के बढ़ते ही कबीलों में इख्तिलाफ हो गया, और कबीलों ने पलट के कहा, ए मूसा, जब आपने एक रास्ता बनाया है तो एक ही कबीले का जाएगा, दूसरे कबीले का नहीं जाएगा। तो मूसा ने पूछा, फिर क्या चाहते हो? कहा हमारे लिए अलग रास्ता, हमारे लिए अलग रास्ता। रिवायत और तारीख में लिखा कि 12 रास्ते जनाब मूसा को बनाने पड़े। अब ये बताइए कि 12 रास्ते बनाने में आज की टेक्निकल क्या कहती है, कितना बड़ा चाहिए? लेकिन आज की टेक्निकल में और जनाब मूसा के आसा में बड़ा फर्क है। इसलिए फर्क है कि जहां पे टेक्निक जहां पर फेल होती है, वहां से मूसा के आसा का आगाज होता है। 12 रास्ते बने, और 12 रास्ते बनने के बाद इस 12 कबीलों के लोगों ने कहा, मूसा हम चले तो जाएंगे, लेकिन एक काम और कर दीजिए, जब आपने इतना काम किया है तो हम ये चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे को हम देख सकें, और ये देखें कि हम पार हो रहे हैं या वो पार हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पार हो जाएं, ये डूब जाए। इसका मतलब ये हुआ अज़ीज़ान मोहतरम कि कबीले 12 जरूर थे, लेकिन उन 12 कबीलों में मोहब्बत इतनी थी कि हम बचे तो ये भी बचे हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, तवज्जो चाह, हम बचे तो ये भी बचे थे। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कीजिए कि हम एक दूसरे को देखते रहे। अच्छा, जब सब जनाबे मूसा ने कर दिया तो खत सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सब कुछ समेट रहा हूँ, बहुत कम शुरू में जब सबको लेके आना चाहूँ पूरे वाक़या को सब करता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो। जब सब कुछ जनाबे मूसा ने कर दिया तो फिर ये 12 कबीले के लोग कहने लगे, ए मूसा हम उतर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें यकीन कैसे आए कि हम इस रास्ते पर चल के बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो जनाब मूसा ने उनकी मर्जी पूछी कि तेरी मर्जी क्या है। उन्होंने पलट के कहा,
ए मूसा, हम चाहते हैं कि कोई इस पे चल के दिखाए। अरे भाई क्या कोई इस पे चल के दिखाए, तब हमें यकीन आ जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, तारीख में लिखा इशारे मौजूद है। जनाब मूसा ने अपने नायब को, अपने वजीर को, अपने जानशीन को करीब बुलाया और बुलाने के बाद हारून से कहा, हारून जरा ये चल के दिखाओ। मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, नियत, अमल, जबान सब समझेगा मेरा मोहतरम। ये मूसा फरमान है, ए हारून, ये मेरे जानशीन, जरा इस रास्ते पर चल के दिखाओ। अजीज़ान ईमान, तारीख के इशारे मौजूद हैं। जनाब मूसा के हुक्म के मुताबिक जनाब हारून ने जब चलना शुरू किया तो हर कबीला उठ के यही आवाज दे रहा था, ए मूसा, हारून मेरे रास्ते पर, ए मूसा, हारून मेरे रास्ते पर, ए मूसा, हारून मेरे रास्ते पर। मेरी बात समझ में नहीं आती है कि 12 कबीले हैं, 12 रास्ते हैं, तो हारून एक ही रास्ते पर चल रहे थे ना। हारून चल एक ही रास्ते पर थे, लेकिन 12 कबीलों से आवाज आ रही है, हारून मेरे रास्ते पर, हारून मेरे रास्ते पर, हारून मेरे रास्ते पर। आपने कुछ महसूस किया? अजीज़ान मोहतरम, सारे बातें का निचोड़ लफ्जों को जुमलों में पहुंचाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि नबी के जानशीन की खासियत ये होती है कि चलेगा एक रास्ते पर, चलेगा एक रास्ते पर। दिखाई 12 जगह दे रहे थे। अब मेरी बात समझ में नहीं आती कि उन मुसलमानों को अली पर के चढ़ाए थे। जब मूसा का जानशीन हारून एक रास्ते पर चल के 12 रास्तों पर दिखाई दे सकता है, तो वो तो नबी का जानशीन अली है। रहता एक है, दिखता 40। शरीयत अपने दायरे का मुनीम चाहती है। शरीयत आपको साफ सुथरा रखना चाहती है, इसलिए कि साफ सुथरा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की नहीं करेगा। जबान सही, अमल सही, नीयत सही। अच्छा, शरीयत ने कहा कि नीयत तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये नीयत भी डैमेज हो जाती है साहब। तो शरीयत कहती है कि ज़बान उसने ठीक की है, अमल भी ठीक किया है और नीयत भी उसकी अच्छी थी, लेकिन आखिरी शर्त में शरीयत ये कहना चाहती है और समझाना चाहती है कि ये देखा जाए कि जो उसने नीयत की थी, आया उस नीयत पर बाकी भी है या नहीं है। अगर बाकी है तो फिर उसे आप मोमिन तस्लीम कीजिए। अब समाज में ढूंढिए साहब, कितने लोग हैं मोमिन? बैठ रहे हैं ना, बैठ नहीं रहे, डट रहे हैं। सुनिए, होता क्या है, अच्छा ये चीज आपको हर मकाम पे देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको एक इशारा करता हूँ, आप समझ जाएंगे, इसलिए समझदार लोग हैं, समझदार मजमा है, तवज्जो। इंसान ने खास तौर से जब साल में रमजान मुबारक आता और मुहर्रम उल हराम आता, दोनों मामले में ये होता है, तो उसने सहर किया और सहर करने के बाद उसने नियत की कि मैं माह रमजान मुबारक का चौथा रोजा रखता हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। क्या कहा उसने जबान से? चौथा रोजा रखता हूँ। अमल क्या है? रोजा रख रहा है। नियत क्या है कि खुदा की रज़ायत के लिए, तौबा के लिए रखता है। ठीक है ना? नियत कर ली, रोजा उसका ठीक ठाक चल रहा है, अमल ठीक ठाक चल रहा है। सहर किया, नमाज पढ़ी, सोया, दोपहर में उसकी आंख टूटी है 2 बजे। ये एग्जाम्पल है, कभी आप ऐसी फिट मत समझ लीजिएगा, ये उदाहरण है कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि इसे आप समझ जाए। 2 बजे उसकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद उसने कहा 2 बज गया, फौरन वजू के लिए गया, वजू किया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के 1 घंटा गुजरा था कि 3 बज गया।
جب 3 بجا تو نیت اس نے صبح سحری کے وقت کیا کی تھی کہ روزہ میں رکھتا ہوں ماہ رمضان المبارک کا چوتھا واجب قربت اللہ. سمجھ رہے نا آپ؟ زبان صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، نیت بھی صحیح ہے. توجہ، جب 3 بجا تو اس کے ذہن میں خیال ہے کہ صبح سے اتنا وقت ہو گیا، نہ کوئی جگانے کے لیے آیا نہ کوئی پوچھنے کے لیے آیا، تو اب کیا کریں گے؟ تو اب یہ کرتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور جب گھر سے باہر نکلیں گے کوئی مسلمان بالغ چاہے نابالغ اگر بیڑیوں سگار چائے بھائی کھینچتا ہوا یا پیتا ہوا مل گیا تو میں اس سے کہوں گا ارے صاحب کم سے کم رمضان مبارک کا احترام کر لیتے. اگر پینا ہی تھا تو خفیہ طریقے سے پیتے، دکھا کے نہ پیتے. تو ممکن ہے میں جب یہ کہوں گا تو وہ پلٹ کے مجھے جواب دے گا، جواب دے کے میرا بڑے روزے دار ہو تم، تو اس سے میں پلٹ کے کہوں گا ہاں میں بڑا روزے دار ہوں. یہ چیز جہاں سے آئی وہیں سے صاحب آپ کا روزہ ڈیمیج ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت آپ کلین چٹ کرنا چاہتے ہیں، کلیئر کہ جو آپ کر رہے ہیں اس پہ باقی بھی رہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آتے آتے آپ کی نیت بدل جائے. نیت بدلی تو سب کچھ بدل جائے گا. اسی لیے ہمہ وقت انسان کو چاہے بستر مرگ پہ ہو، چاہے راستے میں ہو، چاہے شاہراہ پہ ہو، چاہے چوراہے پر ہو، دعا کرتے رہنے چاہیے. اور دعا میں یہ لفظ رکھنا چاہیے پروردگار ہمیں جب بھی موت دینا اس بنیاد پہ موت دینا کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. یہ سخت ہے عزیزان محترم. چلو آپ کو زبان کا پیغام ملا، عمل کی دنیا دیکھی، نیت کا اعتبار دیکھا اور نیت کا بگڑنا بھی دیکھا. عزیزوں سنیں گے اللہ اکبر. یہ گھرانے میں جتنے فضائل سنائے ہیں عزیزوں، سننے کے بعد انسان کی اذہان پریشان اور حیران یہ ہوتے ہیں کہ جس گھرانے کے اتنے فضائل و کمالات ہوں اس کے اوپر اتنے مصائب و علام ڈھال ہوئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کوئی غم سوائے غم آل محمد کے ایک سوگواروں اسی گھرانے میں رہنے والی ایک کنیز، جس کنیز کا نام آپ نے نہ جانے کتنی دفعہ سنا ہوگا، جسے تاریخ میں شیری لکھا ہے. شیری کون شیری؟ عزیزوں میں تھوڑی سی بایوگرافی آپ کے سامنے رس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جگہ پا جائے. عزیزوں شیری کوئی معمولی بیوی نہیں ہے، کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. اور یاد رکھیے جو در اہل بیت پہ آ گیا پھر وہ معمولی نہیں رہتا. عزیزوں نیت اس کی ٹھیک تھی، زبان اس کی ٹھیک تھی، عمل اس کا ٹھیک تھا. کس کا؟ شیری کا. اس لیے کہ اس نے طے کیا تھا مجھے در اہل بیت پہ رہنا ہے. عزیزوں شیری جناب شہربانو کی کنیز خاص، اور اتنی کنیز خاص کہ جس کی انتہا آگے بڑھ گئی اور آگے اتنی بڑھی کہ امام حسین کو شہربانو سے کہنا پڑا یہ شہربانو یہ شیری بہت طیب ہے، بہت پاک و پاکیزہ ہے، بہت نیک ہے، اس کا طور طریقہ ٹھیک ہے، اطوار اس کے بلند ہے. عزیزو امام حسین نے شیری کی تعریف کی. یہ جملے سنیں، شہربانو نے شیری کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے شیری آج سے تو آزاد ہے، تجھے اختیار ہے، تو چاہے ہمارے یہاں رہے چاہے چلی جائے. شیری نے پلٹ کے کہا اے بی بی کیا مجھ سے کچھ گستاخی ہو گئی ہے؟ کیا میں نے کوئی غلط عمل کر دیا ہے؟ شیری کی جملے کو سنا شہربانو نے پلٹ کے آواز دی نہیں نہیں تجھ سے گستاخی نہیں ہوئی. یاد رکھو جس کی تعریف میرا مولا کر دے اللہ، جس کی تعریف میرا مولا کر دے پھر مجھ سے خدمت نہیں لینا چاہے. کنیز نے تڑپ کے جملہ کہا شیری کہتی ہے اے بی بی کچھ بھی ہو جائے، زندگی چلی جائے، میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جا سکتی.
अभी तो रिवायत बताती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ता रहा। मौला हुसैन करम फरमा हुए। एक रोज शीरी को करीब बुलाया और शहरबानों को करीब बुला के कहा कि शीरी की किसी से शादी करा दी जाए। शीरी के रिश्ते के लिए तलाशी शुरू हुई। तलाशी में हारिस नामी शख्स मिला। मौला हुसैन ने उस हारिस के साथ शीरी का अक्द कर दिया। शादी हो गई। जुमला सुनना अजीजों, रोने के लिए काफी हो जाएगा। शीरी ने कहा मौला शादी हो गई, लेकिन महर में मैं आपसे एक चीज रखवाना चाहती हूँ। कहा बताओ क्या रखवाना चाहती हो? कहा रखवाना ये चाहती हूँ कि मेरे शौहर से इतना कह दीजिए कि महर में मैं कुछ नहीं रखना चाहती, तो इतना वादा करा दीजिए कि हर साल आपकी जियारत को मुझे लाया करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा पूरी रमत जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। शीरी तरफ कहती मौला मेरे शौहर से इतना वादा करा दीजिए कि हर साल मुझे आपकी जियारत के लिए लाया करे। अजीजों, शौहर से करीब बुलाया। वाक़ई इमाम हुसैन ने कहा ये होने वाले शौहर शीरी के तू एक वादा कर ले इससे कि हर साल मेरी जियारत को आया करेगा। हारिस ने हाथ को जोड़ के कहा मौला कैसी बात कर रहे हैं? मैं शीरी जो कहे करने को तैयार हूँ, मैं हर साल आपकी जियारत को आऊंगा। ये अदादारों शादी हो गई, वक्त गुजरता रहा। हर साल हारिस शीरी को लेके मौला की जियारत को आता रहा। साल गुजरता रहा, हर साल शीरी को लेके मौला की जियारत को आता रहा। 58 हिजरी आई, शीरी को लेके मौला की जियारत। 59 हिजरी आ गई, शीरी को लेके मौला की जियारत। 60 हिजरी आ गई, शीरी को लेके मौला की जियारत। लेकिन अभी तो जब 60 हिजरी में शीरी आई मौला की जियारत के लिए, तो जियारत करके जब लौटने लगी, हुसैन ने जाते हुए बदल को रोका और आवाज लगाया शीरी मेरे करीब चलिया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। शीरी मेरे करीब चलिया। हुसैन ने शीरी को करीब बुलाया। बुलाने के बाद एक जुमला था, ये शीरी साले आइंदा खाना उनकी जियारत को खुदाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए शीरी साले आइंदा ना हम तेरी जियारत को खुदाएंगे। शीरी ने जुमला सुना, फौरन खुश होकर कहती है मौला ज़रे नसीबा हमारे घर तशरीफ लाएंगे। हुसैन ने तुरंत कहा शीरी हुसैन अकेला नहीं आएगा, अकबर भी साथ होगा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ए शीरी कासिम भी साथ होगा, तो साथ होंगे। ए शीरी अब आज भी हमला होंगे। ए शीरी ये कहे ज़ैनबो कोई कुलथूम भी साथ होंगे। शीरी की खुशी का ठिकाना न रहा, फौरन पलट के कहती मौला मेरा नसीब है कि आपने वादा किया, हम आपके इस दरबार पर तैयार है। अजीजों 61 हिजरी आ गई। 10 मुहर्रम में हुसैन का काफिला रोज़े आशूरा तबाह और बर्बाद हो गया। लेकिन जब ये लुटा हुआ काफिला कूफ में पहुंचा, जब ये काफिला कूफ में पहुंचा, शीरी है जो अपने घर को सजा रही है। घर में आने के बाद उसने तय किया है मेरा आका हुसैन कहाँ बैठेगा, मैं अकबर को कहाँ बिठाऊंगी, मैं औलो मोहम्मद को कहाँ पनाह दूंगी, मैं अब्बास को कहाँ ठहराऊंगी, मैं आने वाली शहजादी ज़ैनबो के कुलथूम को कहाँ बिठाऊंगी। अपने शौहर को जगह मुअय्यना बताती है, यहाँ अकबर बैठेगा, यहाँ औलो मोहम्मद होंगे, यहाँ बिठाऊंगा हुसैन। शीरी अपने शौहर को समझा रही है। अदादारों इसी असना में कूफे के अंदर शोर ढोल और बाशे का बजने लगा। शीरी के कानों में आवाज आई, शौहर को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा घर से बाहर निकलो, बाहर का माहौल मालूम करो। शीरी का शौहर घर से बाहर निकला। निकल के जब उसने मंजर देखा, फौरन पलट के शीरी के करीब गया। जाने के बाद कहते ए शीरी तू जिसका इंतजार कर रही है वो नहीं है। मैंने देखा है कुछ कैदी आए, कुछ कैदी आए हैं, लेकिन वो कैदी बड़े शरीफ दिखाने के मालूम होते, बड़े इज्जतदार मालूम होते। उसमें एक ऐसा कैदी है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खास होते। शीरी सुनने के बाद खामोश होगी। अजीजों बहुत प्यासे बर्तन है। जब काफी देर
वाले आने के बाद कैदी से पूछना शुरू किया, मुझे बताओ तुमको। मैं कैदी से बोला न गया, जब अल्लाह जाने आप कैसे सुनेंगे। कैदी से जवाब न दिया गया, फिर सीधी पूछती रही तुम कौन हो, बोलते के कैदी से बोला न गया। जब तीसरी नमस्कारी ने हाथ को जोड़ कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो। कैदी के जवाब किसी देव जुम्मा निकला, हम मदीने के रहने वाले। कैदी ने आवाज दी, शीरी हम मदीने के रहने वाले। शीरी ने कैदी को छोड़ा, बीवियों के करीब गई। जाने के बाद पूछा, ये बताओ अभी कैदी ने मुझे बताया कि आप लोग मदीने के रहने वाले हैं। आवाज बीवी ने मिलकर एक आवाज भी कहा, हाँ हम मदीने के रहने वाले हैं। जब मदीने का नाम सुना तो शीरी फिर पलट के कहती है, जब तुम मदीने के रहने वाले हो तो तुम्हें मदीने में तब पता होगा, तुम्हें कबीला भी पता होगा। कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहा महल्ले बनी हाशिम को जानती हो। महल्ले बनी हाशिम का नाम आया, बीवियों से राह लगेगा, बीवियों से राह टूटने वाला था। कैदी शीरी ने पूछा, बताओ तो महल्ले बनी हाशिम को जानती हो क्या। बीवियों ने पलट के कहा, हम जानते हैं। कहा उसी महल्ले बनी हाशिम में मेरा जुमला मुकम्मल न हुआ था कि नोके नेता से तिलावत होने लगी। सरे हुसैन रोया हुआ, ए शीरी ज्यादा कबूल, वो मेरी बहन है। शीरी ने जुमला सुना, तरफ के आवाज, ये माना वादा अच्छा किया, यही मेरी मेहरबानी है। बस इतना बता दो अब्बास कहाँ थे। लोग नेता के सरे हुसैन बोला, ए शीरी अब्बास को न पूछ, अब्बास के सामने कपड़े पहन हुए, मेरा सरकार हुआ। करबला में लुट गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बक़ज़ाई व तस्लीमान लिअम्रिह सियालम लज़ीन ज़लमू मुनक़लिबून यनक़लिबून इला अहलिहिम व नजात व बाक़िन आफ़िल बर्रि वल बहरि इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरला पूरा मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मुख़्तसर इबादत को कबूल फरमा। जो आके वाले हुसैन नश्किबार हैं, उन आँखों को नूर से नूरानियत अता फरमा। बरला जहाँ कहीं निशान हदस करा जानमाल से दुआ होती है, हिफाजत करना। नज़ारत मुक़द्दसा अब्बात आलिया की हिफाजत करना। बरला अरबईन बहुत करीब है, मजलिस हुसैन हमने की है। ये भी है कि जो मजलिस में दुआ की जाए तो दूर का दर्जा मिलता है। बरला जो लोग ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हैं या जो लोग हो भी चुके हैं, बरला उन्हें दोबारा करबला साबरा की ज़ियारत नसीब फरमा। बरला हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक तू और आले मोहम्मद हमसे राज़ी न हो जाए। हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनकी आवाम आसार में शिफात फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।